Hello and welcome to Bharat Blossoms. This is lecture number 1B of our Science and Technology module for UPSC and other competitive exams. In our previous video, we discussed about basics of rockets and jet. Our today's topic is types of orbits. So let us look into it. What are the types of orbits? This is very important as you will frequently come across terms like geosynchronous orbit, polar orbit. Whenever any satellite is launched, these terms come into news and people often get confused between these terms. So today, this topic will be very crystal clear to you. So let us move forward. Our first question arises that what does an actually orbit do, or what is an orbit? So an orbit is a curved path that an object in space such as star, planet, moon, asteroid or spacecraft takes around another object due to gravity. For example, this is our sun and this is earth. So both will attract each other due to their gravity. In our 11th class physics, we have learned one formula, that is gravitational force equals to G m1 m2 by r square. This means that force depends upon mass of both the bodies and the distance between them. This is the basic principle behind working of an orbit. So gravity causes objects in space that have mass that is that formula F equals to G m1 m2 by r square, that have mass, that two mass of two bodies m1 and m2, to be attracted to other nearby objects. If this attraction brings them together with enough momentum, they can sometimes begin to orbit each other. For example, if two bodies are of equal masses or near about equal masses, their orbits will intersect each other. But if one body is very small, for example earth, and other body is very big, for example sun, the smaller body will orbit around the sun. So I hope this is clear that what is an orbit. Let us take an example. In our solar system, moon orbits earth and earth orbits sun. This is a very commonly known fact which you all might be aware of. So our next question is that how do we reach an orbit? जैसे मान लीजिए हम एक बॉल फेंकते हैं, तो बॉल जब हम फेंकते हैं तो बॉल तो हमारी नीचे गिर जाती है, बट जब हम एक सैटेलाइट छोड़ते हैं तो हमारी सैटेलाइट नीचे क्यों नहीं गिरती है? सैटेलाइट क्यों हमारा ऑर्बिट करने लग जाता है अर्थ को? ये क्वेश्चन हमेशा राइज होता है कि एक बॉल, हम जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, नॉट ओनली बॉल, तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर लेती है, बट सैटेलाइट तो गोल गोल चक्कर मारती रहती है। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? इसके पीछे की साइंस ये कहती है कि देखिए, जैसे दिस इज द एग्जाम्पल फॉर बॉल। जब भी हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो उस पर दो कंपोनेंट लगते हैं फोर्स के। एक फॉरवर्ड फोर्स जो हमने बॉल को फेंकने में लगाया है, और बॉल पे जो अर्थ की ग्रेविटी नीचे की साइड उसको अपनी साइड खींचती है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन में कुछ आता है, जिसकी वजह से बॉल अल्टीमेटली नीचे गिर जाती है। लेकिन जब हम सैटेलाइट को एक बहुत ही तेज़ वेलोसिटी से, जो कि एस्केप वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी से रिलीज़ करते हैं, इतनी वेलोसिटी की जो वेलोसिटी का फॉरवर्ड फोर्स का फॉरवर्ड कंपोनेंट होता है वो रिजल्टेंट फोर्स अर्थ के कर्वेचर के बराबर हो जाए, इस कंडीशन में सैटेलाइट उसका कंटिन्यूसली अर्थ का चक्कर लगाने लग जाती है। द डिफरेंस इज दैट throwing something, it will make it fall on curved path towards the ground, but a really powerful throw will mean that the ground starts to curve away before your object reaches the ground. Your object will fall towards earth indefinitely, causing it to circle planet repeatedly. Congratulations, you have reached your orbit. In space, there's no air, therefore no friction, so gravity lets the satellite orbit around earth with almost no further assistance. Putting satellite into orbit enables us to use technologies for telecommunication, navigation, weather forecast and astronomy observations. अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया ऑर्बिट्स का बेसिक। अब नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। सो इस कैटेगरी में हमारा फर्स्ट आता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म मेनी टाइम्स इन अपकमिंग लेक्चर्स वेन एवर वील स्टडी अबाउट सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल्स एक्सेट्रा। सो देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी। सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सर्कल अर्थ अबव द इक्वेटर। जैसे ये डायग्राम पे फोकस करिएगा, जैसे ये अर्थ हमारा अपने एक्सिस पे टिल्टेड होता है, दिस इज आवर इक्वेटर। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो इक्वेटर के ही प्लेन में 35,786 किलोमीटर पे आगे आके इक्वेटर का हमारा ऐसे ऐसे चक्कर मारता है। अर्थ अबव इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फॉलोइंग अर्थ रोटेशन टेकिंग 23 आवर्स 56 मिनट्स एग्जैक्टली जो टाइम अर्थ को सन के अराउंड ट्रैवल करने में लगता है, बाय ट्रैवलिंग एग्जैक्टली द सेम रेट एज अर्थ। दिस मेक्स, अब देखिए जैसे हमारा अर्थ भी सेम स्पीड पे घूम रहा है और ये सैटेलाइट भी सेम स्पीड पे घूम रहा है, तो जब हम अर्थ पे खड़े होकर इस सैटेलाइट को देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये सैटेलाइट अपनी जगह पे स्थिर है, मतलब वो हमको घूमता हुआ नहीं दिखेगा। वहीं से हमारा नाम आता है जियो स्टेशनरी। जियो मीन्स अर्थ एंड स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ सैटेलाइट। यहाँ देखिए, दिस मेक्स सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अपीयर टू बी स्टेशनरी ओवर अ फिक्स्ड पोजीशन इन ऑर्डर टू परफेक्टली मैच अर्थ्स रोटेशन। द स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड बी अबाउट 3 किलोमीटर पर सेकंड एट एन दिस ऑल्टीट्यूड वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, इट हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम मेनी अ टाइम. You can remember the approximate value, that is 36,000 kilometers. If you can't remember this exact value, the approximate value is 36,000 kilometers. अब देखिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तो आपको समझ आ गया होगा, बट इसका यूजेस क्या होता है, चलिए देखते हैं। जियो स्टेशनरी इज यूज बाय सैटेलाइट्स दैट नीड टू स्टे इन
constantly above one particular place over Earth, such as telecommunication satellites, weather monitoring. अब हमको जैसे इंडिया में एक किसी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर मेंशन स्टडी करना है, हमको मान लीजिए गैंजेटिक प्लेन्स का वेदर स्टडी करना है, तो हमको चाहिए कि हमारा जो सैटेलाइट है वो हमेशा हमारे गैंजेटिक प्लेन्स के ऊपर ही रहे। उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए इसके नाम में ही है लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ के कंपैरिजन में वो बहुत कम होगी, मतलब हाइट बहुत कम होगी। तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट्स, एन ऑर्बिट दैट इज रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ सरफेस। इट इज नॉर्मली एट एन ऑल्टीट्यूड लेस देन 1000 किलोमीटर, बट इट कुड बी एज लो एज 160 किलोमीटर। सोचिए अर्थ के ऊपर 160 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। हमारा जो एयरप्लेन ट्रैवल करता है, तो एयरप्लेन हमारा ट्रैवल करता है अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 किलोमीटर्स पे। तो सैटेलाइट के लिए 160 किलोमीटर इज नॉट अ वेरी बिग डिस्टेंस। जब स्पेशली हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर्स ऊपर है, उस कंपैरिजन में हमारा लो अर्थ ऑर्बिट बहुत नीचे रहता है। इट इज़ द ऑर्बिट मोस्ट कॉमनली यूज फॉर सैटेलाइट इमेजिंग। जहाँ पे भी हमको इमेजिंग की ज़रूरत होती है, मतलब हमको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए, वहाँ पे हम लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो द ऑर्बिट यूज फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जैसे नासा का है, चाइना का है, इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू हैव इट्स ओन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वेरी सून। इसरो इज वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड वी होप वेरी सून वील हैव आवर ओन स्पेस स्टेशन। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वो भी हमारा इसी लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, ताकि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इजीली अर्थ से टू एंड फ्रो मोशन कर सके। तो नेक्स्ट हमारा आता है पोलर ऑर्बिट एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। देखिए पोलर ऑर्बिट क्या है, नाम से ही है कि जो हमारा अर्थ का पोल्स है उस पोल्स को ऑर्बिट करेगा। अभी तक जो हमारे देखे वो हमने देखा कि वो लैटिट्यूड के अराउंड थे हमारे, हमारा जियो सिंक्रोनस भी इक्वेटर के अराउंड था, लो अर्थ ऑर्बिट भी हमारा यहाँ पे था। नाउ जो पोलर ऑर्बिट होता है वो सैटेलाइट पोल्स के अकॉर्डिंग अराउंड ट्रैवल करता है इस फैशन में। Satellites in polar orbit usually travel past Earth from north to south rather than from west to east, जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया। पोलर ऑर्बिट्स आर टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट भी हमारा उसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती है, 600 से 800 किलोमीटर ही होती है, जैसे हमारा लो अर्थ ऑर्बिट की 1000 किलोमीटर तक थी। अब इसी पोलर ऑर्बिट का एक स्पेशल केस होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। पहले हमने देखा था जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस क्या था, मतलब जियो मीन्स अर्थ, मतलब हमारा वो अर्थ के कंपैरिजन में सिंक्रोनाइज था। अब आता है हमारा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट। सैटेलाइट्स इन एसएसओ ट्रैवलिंग ओवर पोलर रीजन आर सिंक्रोनस विद द सन। दिस मीन्स सैटेलाइट ऑलवेज विजिट्स सेम स्पॉट एट द सेम लोकल टाइम। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट अभी हमारा दोपहर के 12 बजे पेरिस के ऊपर है, तो हर दिन एवरी डे दोपहर के 12 बजे ये सैटेलाइट हमारा पेरिस के ही ऊपर आएगा। This means satellite always visits same spot at the same local time. It is used for weather patterns to help predict storms, forest fire, flooding, or to accumulate data on long-term problems like deforestation or rising sea levels. So I hope जो हमारे 3-4 टाइप्स के ऑर्बिट्स होते हैं इसका आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स। सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे PSLV, GSLV, SSLV। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक्स ऑफ UPSC एंड स्पेस का जो हमारा मॉड्यूल है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर आई प्रॉमिस टू डिलीवर इट बाय टुमारो एंड आई ट्राई टू डिलीवर इट बाय टुमारो बाय नाइट। थैंक यू, जय हिंद,